नमस्कार अंचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सबसे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। Voted in all elections since 1950, all, including the local body elections. And there are 1,184, and they come to, many of them come to the booth. They say we do not need the Form 12D, we'll come to the booth. So they are really the source of inspiration for all of us. And हमने उनको सबके घर में एक चिट्ठी भेज के अपने BLO साहब के थ्रू या अफसर्स के थ्रू सबको सम्मानित भी किया और आभार भी प्रकट किया कि आप ही की प्रेरणा से बाकी लोग भी आगे बढ़ के वोट दे सकें। Friends, there are 1.2 lakh voters who would be 80 plus in Himachal, and 1.86 lakh voters would be first time voters between 18 years and 19 years. And these are the one with whom we are very focused way we are connecting with all of them by organizing large number of events in their colleges and institutions. As you know, the amendment in section 14 enabled us to register voters in the 4 qualifying dates. तो आप इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि जो लोग 1 जनवरी अगर ये अमेंडमेंट ना होता तो 1 जनवरी 22 को जो भी लोग 18 इयर्स के हो गए वही वोटर बन पाते, उसके बाद में 1 जनवरी 23 की क्वालिफाइंग डेट से वोटर बनते. बट बिकॉज ऑफ दिस चेंज in Himachal alone, those who were born after 1st January 22 but before October 22, 43,173 additional voters have been enrolled and they would be able to participate in this festival. This is only because of the amendment which happened, and you can extrapolate it and see because of these 4 changes. And now what we have done and what will happen in the SSR now, even if somebody is 17 and is going to be 18 next year till October 2023, in the new SSR which is coming in the entire country, they can apply in advance. And we take the responsibility of keeping that application with us and making him or her the voter the date on his or her birthday. And our officers will send them a kit, a welcome kit for the new voters, which will contain the EPIC card, which will contain how to vote, which will contain about how the EVMs function, which will contain the digital, the website links to where they can educate themselves about the election process. We, through you, call upon all voters in Himachal to come out and vote. Their participation should take inspiration from the elders who are there in that state, and our fervent appeal that all stakeholders maintain COVID appropriate behavior. Friends, आयोग ने हमेशा मीडिया को चुनावी प्रक्रिया में अपना सबसे बड़ा एलाई माना है. It's a kind of a natural ally. That is why first time we come here and announce. There is nobody who comes to know of this. मैं दोहराना चाहूँगा कि आपके माध्यम से सभी वोटर्स को एक बार पुनः अपील करेंगे. And the exact schedule for the state would be as it's being shown on your slides. Notification dates. If it is visible, the date for the Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us, to come and vote in the state of Himachal. I hand over to Shefali ji back. Thank you. We'll take questions. Neeraj, आप शुरू करें. माइक दे दें यहाँ फर्स्ट रो में.
नीरज, हेलो हेलो जी सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से, नेटवर्क 18 से। जी मेरा सवाल तो एक ही है, लेकिन उससे जुड़े कई क्लैरिफिकेशन चाहिए होंगे। क्या गुजरात, पहला तो ये कि गुजरात चुनाव की घोषणा अपने साथ में करने का फैसला क्यों लिया, साथ में न करने का फैसला क्यों लिया? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा 8 दिसंबर के बाद होगी? क्योंकि गुजरात के विधानसभा की अवधि में वक्त अभी काफी है, क्योंकि पिछली बार 10 दिनों के फासले पे दोनों राज्यों के चुनाव की घोषणा की गई थी। और तीसरा सवाल यह है, दोनों सवालों के जवाब से वो होगा कि आप ही लोगों ने रूल बनाया है कि 6 महीने के अंतराल के अंदर में जो जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उनकी घोषणा साथ में की जाएगी। अभी साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, उत्तर प्रदेश के साथ बाकी 4 राज्यों के। तो जो रूल चुनाव आयोग बनाता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उससे आप लोग पीछे हट रहे हैं, उसी को आप लोग रूल को बदल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, अलग अलग क्यों है? 6 महीना के अंदर 2 राज्यों के विधानसभा की अवधि खत्म होती है और आप लोग जो हैं अलग अलग चुनाव की घोषणा कर रहे हैं। एक साथ 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं जी, फाइन सर। एक और ले लेते हैं। हाँ, सर मेरा नाम रवि त्रिपाठी है, मैं जी न्यूज़ से हूँ। मेरा सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ये सवाल उठा रही थी कि एक राज्य का चुनाव हो जाएगा और उसके नतीजे आने के बाद दूसरे राज्य का चुनाव तुरंत होगा, तो चुनाव प्रभावित माना जाएगा कि इसके रिजल्ट की वजह से उसका, ये इस तरह के सवाल उठते रहते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखा था शायद पिछली बार इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों के रिजल्ट 18 तारीख को किए गए थे। क्या इस बार इस बात को ध्यान में रखा गया है या नहीं आएगी? इस तरह की शिकायत आएगी तो उसका किस तरह से आप उसका मुकाबला करेंगे? प्रदीप, आप भी ले लें। वन मोर। सर मेरा नाम प्रदीप है, टोटल टीवी न्यूज़ से हूँ। और सवाल यही है सर, जिस तरीके से जो सब इंतज़ार कर रहे थे, जिस तरीके से चुनावी शेड्यूल का, गुजरात भी सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला जिस पर नजरें थी, लेकिन ये जो चुनावी मुकाबला सिर्फ अनाउंस हुआ हिमाचल का, तारीखें अनाउंस हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें गुजरात में भी आपने बैठकें की थी, गुजरात की तैयारियां, ऐसे लग रहा था कि आप अनाउंस करेंगे। इसके पीछे हटने की क्या वजह रही? क्योंकि आपने पूरा शेड्यूल वहां पर तैयार किया था, बैठकें कर ली थी, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी, होल्ड रखने की वजह क्या है? Sir, On this only? Sir, Yeah, sir. one more. sir, this is on election. Have anything being decided or recommended to the parties on the After freebies? now, I'm Anuj has it- from Republic TV. I'm Anuj from Republic TV. Have anything recommended to the political parties on freebies? So I will take these questions. The first from the first row and all three together. Is it? Ji? Both. I'll do both so that it's fair to everybody. Commission actually goes by the convention in announcing the schedule of elections. It has decided to go by the convention which was set up, which was last followed. In any case, the preparation and conduct of elections is a very detailed exercise, and it takes into account various factors, variable factors, consultation with all the stakeholders, and the factors which are competitive. As the friend asked, the impact of result of one election on the another. The gap. चलिए इसी के साथ ही दिल्ली से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बता दें हिमाचल प्रदेश में एक चरण में होगा मतदान। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। बता दें कि 12 नवंबर को ये मतदान जो है होने वाला है। बड़ी खबर यहाँ पे आपको बता रहे हैं। एक बार फिर बता दें कि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। बता दें कि एक चरण में सभी 68 सीटों पर मतदान होंगे। बड़ी खबर यहाँ पे दिल्ली से सामने आ रही है। इसी के आगे आपको बता दें कि यहाँ पे बड़ी खबर जो यहाँ पे दिल्ली से सामने आ रही है, हिमाचल प्रदेश में मतदान की से जुड़ी हुई खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि 12 नवंबर को मतदान होने हैं। बड़ी खबर यहाँ पे बता रहे हैं। एक बार फिर बता दें कि 8 दिसंबर को इस मतदान के नतीजे सामने आ जाएंगे। इधर डिंडौरी जिले में चलाया जा रहा है नशा मुक्ति अभियान